ایک شعر پڑھتا ہوں سنیں. جو ان کی یاد میں آنسو بہانے والے ہیں، ہے نا، جو نبی کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر بول دے سبحان اللہ. جو ان کی یاد میں آنسو بہانے والے ہیں، جو ان کی یاد میں آنسو بہانے والے ہیں، انہیں حضور مدینے بلانے والے ہیں، انہیں حضور مدینے بلانے والے ہیں. اے عاشقان محمد ادب سے بیٹھو یہاں، اے عاشقان محمد ادب سے بیٹھو یہاں. او کچھ ہی دیر میں، او کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں، او کچھ ہی دیر میں. اچھا سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں ذرا سارے لوگ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ، اور ذرا زور سے بول دیں یا رسول اللہ. جانتے ہیں ہماری حالت کیا ہے؟ برا نہ مانیے گا، بتا دوں ہماری حالت کیا ہے. ہماری حالت یہ ہے نوجوانوں کہ ماں زندہ تھی اور اسپتال میں تھی تو بیٹا علاج کرانے نہیں جاتا، باپ بیمار پڑا ہو، دوا کی جو گھونٹ کی ضرورت ہو تو بیٹا اسپتال میں دوا خرید کر پہنچانے نہیں جاتا، مگر وہی ماں باپ جب انتقال کر جائیں تو رائمنڈ کمپنی کا کفن کا کپڑا خریدنے کے لیے جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایمانداری سے بتاؤ، سینے پہ ہاتھ رکھ کر، جب تیری ماں کو تیری ضرورت تھی تو نہیں پہنچا، تیری ماں بستر مرگ پر ان نگاہوں سے دیکھ کر انتظار کرتی تھی، کاش میرا بیٹا ایک بار آ کر مجھ سے مل لیتا، کاش میرا شہزادہ ایک بار آ کر دوا کی دو گھونٹ میرے منہ میں ڈال دیتا، کاش میرا لاڈلا انہی انگلیوں سے میرے منہ میں پانی کا ایک گھونٹ ڈال دیتا جس انگلیوں کو پکڑ کر میں نے اپنے بیٹے کو چلنا سکھلایا ہے. آج کا بیٹا بدیس میں اپنی دنیا میں مست ہے، آج کا بیٹا پردیس میں اپنی دنیا میں مست ہے، آج کا بیٹا اپنے بزنس میں مست ہے. آج بیٹوں کو اتنی فرصت نہیں کہ ماں کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے جائے، جبکہ عمرہ میں بہت کم پیسے لگتے ہیں، جبکہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ تو انڈیا میں بیوی بچوں کو گھمانے میں خرچ کر دیتا ہے. اگر 2 لاکھ خرچ کر لے تو بیٹا بھی عمرہ مکہ مدینہ دیکھ لے گا اور ماں بھی مکہ اور مدینہ دیکھ لے گی. لیکن افسوس ان اولادوں کے بارے میں آپ سے کیا کہوں، جو اولادیں باپ کے مرنے کے بعد اس لیے بدیس سے آتی ہیں، اس لیے کشمیر سے چلی آتی ہیں، اس لیے بنگلور دلی اور ممبئی سے چلی آتی ہیں کہ نہیں جائیں گے تو زمانہ کیا کہے گا. آنے کے بعد وہ غریب بھائی جو پوری زندگی غربتی میں بھی ماں باپ کی خدمت کرتا رہا، اس غریب بھائی سے کہتا ہے تمہارے پاس پیسہ نہ ہو تو میرے پیسے کا کفن لگاؤ، مگر کمزور کفن نہ خریدنا، کم قیمت کا کفن نہ خریدنا. غریب بھائی کہتا ہے پوری زندگی میں خدمت کرتا رہا اور اب جب باپ مر گیا تو تمہارا کفن باپ کو پہنائیں گے. جب عید کا دن تھا تو کپڑا میں نے دیا تھا، رمضان کا مہینہ تھا تو کپڑا میں نے دیا تھا، جب میرے باپ کو کہیں رشتہ داری میں جانے کی ضرورت تھی تو کپڑا میں نے دیا تھا، میری ماں بیمار پڑی تھی تو کپڑے میں نے خریدے تھے، میری ماں اسپتال میں تھی تو دوائیاں میں نے خریدی تھی. آج میں غریب ہوں، زمین بیچ دوں گا مگر میرے ہی پیسے کا کفن میری ماں کو لگے گا. تو وہ بیٹا مولانا صاحب کے پاس جاتا ہے. مولانا ولی اللہ صاحب آپ ایمانداری سے بتاؤ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ سلطان رضا کہنا چاہے گا کون کہتا ہے تو اس باپ کا بیٹا نہیں ہے، کون کہتا ہے تو اس ماں کا بیٹا نہیں ہے. لیکن ذرا ایمانداری سے بتا، مرنے کے بعد اگر تو اس باپ کا بیٹا ہے، مرنے کے بعد تو اس ماں کا بیٹا ہے تو بیٹا اس وقت بھی تھا جب تیرے باپ کو اسپتال میں دوا کی ضرورت تھی، تو بیٹا اس وقت بھی تھا جب تیرے ماں کو عید کے دن کپڑے کی ضرورت تھی، تو بیٹا اس وقت بھی تھا جب تیرے ماں کو پیسے کی
की जरूरत थी। तू तो बेटा उस वक्त भी था जब तेरे बाप को अस्पताल में दवाइयों की जरूरत थी। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, मरने के बाद बाप को कीमती कफन देने वालों और बाप के नाम पर पूरे इलाके को खाना खिलाने वालों, जिंदगी में ही माँ बाप को अच्छा कपड़ा पहना कर दुआएं कराकर जन्नतुल फिरदौस में जगह हासिल कर लो, ताकि तेरी दुनिया भी हसीन हो जाए और आखिरत भी हसीन हो जाए। हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा सिवानी उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, मरने के बाद पूरे इलाके को बुलाते हो, इसलिए खिलाते हो। जमाना कहे ये बाप को बहुत मानता था, जमाना कहे ये माँ को बहुत मानता था, लेकिन ये फकीर मशवरा देता है, ये मेरी कौम के शहजादों, आए मेरे कौम के लोगों, आज आप कौन बेटा अपनी माँ से कितना प्यार करता है, जरा गौर से मेरी बात को सुनना, जरा प्यार से मेरी बात को सुनना। मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए का खाना माँ बाप के मरने के बाद गांव वालों को मत खिला। जिंदगी में 100 रुपए का खाना माँ बाप को मोहब्बत के दस्तरखान पे बैठकर अपने हाथों से खिला दे, उनकी दुआएं तुझे जन्नत की दहलीज तक पहुंचा देगी, उनकी दुआएं तुझे जन्नत की दहलीज तक गई। तो सुल्तान रजा से आज माँ के हवाले से ही सुन लो। बोलूं इजाजत है? इजाजत है ना? जरा हाथ उठाकर पूरा मजमा अपनी माँ के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माँ कब्र में होगी तो मुस्कुराएगी, माँ दुनिया में होगी तो मुस्कुराएगी। कब्र में इसलिए मुस्कुराएगी, फरिश्ते कहेंगे आज तेरे बेटे ने सुभान अल्लाह कहा है, और दुनिया में इसलिए मुस्कुराएगी कि आज मेरे बेटे ने जिंदगी में ही मेरे नाम पे सुभान अल्लाह कहा है। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों सुनो, अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कौनैन के ताजदार है, मेराज की शब में तशरीफ ले जाते हैं। जब आका की सवारी मस्जिद अक्सा में पहुंची है, सारे अंबिया हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे अंबिया आका की ताजीम के लिए खड़े हैं, आका के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, आका के वेलकम और स्वागतम के लिए खड़े हैं। जिस नबी की ताजीम, वेलकम, स्वागतम, इस्तकबाल के लिए सारे अंबिया खड़े हैं, जरा उसी नबी की जिंदगी देखो, आओ जरा उसी नबी का किरदार देखो, आओ जरा उसी आमिना के लाल की सीरत देखो। आमिना के लाल है, मस्जिद नबवी शरीफ है, अल्लाह अल्लाह, सहाबा एक तरफ बैठे हैं, दूसरी तरफ बैठे हैं, सहाबा की झुरमुट में मेरे आका बैठे हैं। ऐसे बैठे हैं आका, ऐसे बैठे हैं आका, जिसका नक्शा मेरे इमाम ने बरेली से यूं खींचा, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारायना नहीं। अल्लाह अल्लाह, नबी मुस्कुरा रहे हैं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। आका करीम सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं। इतने में एक खातून, एक औरत, एक महिला मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल होती है। हमारे और आपके पैगंबर की नजर, मुस्तफा जाने रहमत की नजर, कौनैन के ताजेदार की नजर जब उस औरत पर पड़ी है, उस महिला पर पड़ी है, उस खातून पर पड़ी है, आका करीम की नजर पड़ी, फौरन आमिना के लाल उस औरत की ताजीम के लिए खड़े हो गए, इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए, वेलकम और स्वागतम के लिए खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए तो सहाबा भी खड़े हो गए। जब आका के करीब वो औरत आई तो आका करीम ने अपने चादरे मुबारक को कांधे से उतारा और जमीन पर बिछा दिया। कहा आपके बैठने की जगह वो नहीं, आपके बैठने की जगह ये है। सहाबा मचल गए, अर्ज करते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आका जी, सारे अंबिया, सारी दुनिया के लोग आपकी ताजीम के लिए खड़े होते हैं। आका जी, ये कौन महिला है, ये कौन खातून है, ये कौन पाकीज़ा औरत है जिनकी ताजीम के लिए
आज रसूलों का रसूल खड़ा हो गया है, आमिना का लाल खड़ा हो गया है, नबियों का सुल्तान खड़ा हो गया है, नबियों का सरदार खड़ा हो गया है। आका जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरे सहाबा क्या तुझे पता नहीं है, तेरा पैगंबर, तेरा नबी, मेरा नबी जिस औरत की ताजीम के लिए खड़ा हुआ वो औरत कोई और नहीं, वो आका की दूध पिलाने वाली माँ हजरते दाई हलीमा है, जिनकी ताजीम के लिए आका खड़े हो गए। कहा सहाबा ये मेरी माँ है जिन्होंने मुझे दूध पिलाया है, मैं अपनी दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़ा हो गया हूँ। इतने में उनके शौहर आए, आका करीम फिर खड़े हो गए। कहा ये मेरे रजाई वालिद है, उनके लिए चादर बिछा दी। सुल्तान रजा आज के नौजवानों से पूछना चाहेगा, ए मेरी कौम के नौजवानों, जलसों में आने वालों, मस्जिदों में सजदा करने वालों, ईमानदारी से बताओ क्या तुम भी कभी माँ की ताजीम के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी कभी अपने बाप की इज्जत के लिए खड़े होते हो? क्या तेरे सामने भी तेरा बाप और तेरी माँ आती है तो तुम खड़े हो जाते हो? ईमानदारी से बताना, तुम कुर्सी पे बैठते हो, माँ नीचे बैठती है, तुम चारपाई पे बैठते हो, माँ नीचे बैठी है, तुम चैम्बर में बैठे हो, बाप चपरासी की तरफ बाहर खड़ा है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा यही वजह है आज तेरी जिंदगी में कामयाबी नहीं है, आज तेरे कारोबार में बरकतें चली गई है, आज तेरी जिंदगी से कामयाबी और कामरानी रुठ गई है। इसलिए सुल्तान रजा आज के जलसे से पैगाम देना चाहेगा, ऐ पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इंसानियत का सबसे बड़ा पैगाम ये लेकर के जाओ कि आज के बाद तुम अपने चैम्बर में बैठे हो, तिजारत की कुर्सी पर बैठे हो, अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठे हो, अपने घर के अंदर बैठे हो, बगल में तेरी बीवी बैठी है, बगल में तेरे बच्चे बैठे हैं, तुझे जन्म देने वाली तुम्हारी माँ, तेरा बाप जब तेरे सामने आ जाए तो फौरन ताजीम के लिए खड़े हो जाना, इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाना। बीवी से कहना तुम भी खड़ी हो जाओ, बच्चों से कहना तुम भी खड़े हो जाओ। तेरी बीवी और बच्चे तुझसे कहेंगे कल तक माँ बाप की इतनी इज्जत नहीं करता था, आज इतनी इज्जत क्यों करने लगा? कहना पगली कल तक नहीं जानता था, आज मैंने पैगामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस में मौलाना वलीउल्लाह साहब ने सुल्तान रजा सीवानी को बुलाया था, आज हमने जान लिया है कि हमारा और तुम्हारा नबी तो दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़ा हो गया, मैं तो उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिसने दूध भी पिलाया है और जिसने पेट में 9 माह खूने जिगर भी पिलाया है। जब मैं नंगा था तो मेरे जिस्म पर सबसे पहले आंचल का कपड़ा ओढ़ाया है, जिस माँ ने उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया है, जिस बाप ने पूरी जिंदगी की कमाई मेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दी है, तो नबी मस्जिद नबवी में माँ की ताजीम के लिए खड़े हो गए। मैं उनका उम्मती अपने घर में माँ की ताजीम के लिए खड़ा हो गया, अपने घर में बाप की ताजीम के लिए खड़ा हो गया। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, तुम चाहते हो कि सारी दुनिया तुम्हारी इज्जत करे तो तुम अपने माँ बाप की इज्जत करने वाले बन जाओ। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, बताओ कितने नौजवान हो जो कल से अपने माँ बाप की इज्जत करोगे? जरा हाथ उठाओ तो।